morning, students. Yesterday we were discussing the reactions of alcohols, chemical properties of alcohols, and last time we were discussing the reaction of alcohols including the cleavage of a carbon-hydrogen bond. So let us continue this topic. So next is a reaction of alcohol. A reaction of alcohol with PCl3. Now see how the alcohols will react with phosphorus trichloride PCl3. So here I am taking alcohol ROH. This is representing an alcohol, and when it is treated with PCl3, see what will happen. It will change into alkyl chloride. इसमें change हो जाएगा alkyl chloride. RCl form होगा along with formation of H3PO3, and you can see how many chlorines are there. 3 chlorine atoms. So there will be a requirement of 3 alcohol molecules. 3 alcohol molecules react करेंगे and 3 molecules of alkyl chloride will be formed along with formation of H3PO3. So suppose you have methanol and methanol is treated with PCl3. You can complete the reaction. Suppose you have ethanol and ethanol is treated with PCl3. You can complete the reaction. And suppose you have N-propyl alcohol CH3CH2OH, and if it is treated with PCl3, you can complete the reactions. See, methanol will be changed into what? When it is treated with PCl3, it will be changed into methyl chloride CH3Cl along with formation of H3PO3. methanol जो है वो किस में चेंज हो गया? मिथाइल क्लोराइड में चेंज हो गया. बैलेंस कर सकते हो 3 मॉलिक्यूल्स, सबके 3 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करेंगे. ठीक है, इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे. जैसे 3 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के हैं, अगर हम इनको ट्रीट करें किसके साथ? PCl3 के साथ, तो क्या फॉर्म होगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल क्लोराइड. यहाँ पे CH3CH2Cl फॉर्म हो जाएगा. 3 मॉलिक्यूल CH3CH2CH2Cl के फॉर्म हो जाएंगे along with the formation of H3PO3 plus H3PO3. Next is the reaction with PCl5. अब हमारे पास अगर अल्कोहल है, अल्कोहल को ट्रीट किया किसके साथ? PCl5 के साथ ट्रीट किया. Then see what will happen. Again प्रोडक्ट वही बनेंगे alkyl chlorides, बट यहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो वो डिफरेंट होंगे along with the formation of HCl, and और साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा that will be POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. ये रिएक्शंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं alkyl halides की प्रेपरेशन में भी. ठीक है, ऑल दिस रिएक्शन वी हैव स्टडीड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ alkyl halides. ठीक है, if you have methanol and if methanol is treated with PCl5, then what will happen? It will form methyl chloride along with the formation of HCl and POCl3. ठीक है, अब अगर नेक्स्ट अल्कोहल है हमारे पास, सपोज वी हैव इथेनॉल, and if ethanol is treated with PCl5, then see what will happen. It will form ethyl chloride. क्या फॉर्म होगा? ethyl chloride फॉर्म होगा CH3CH2Cl along with the formation of HCl and POCl3. So in this way you can complete these reactions. Another reaction जो है हमारे पास, suppose we have this alcohol and if it is treated with the PCl5, then see what will happen. It will form CH3CH2CH2Cl along with the formation of HCl and POCl3, phosphorus oxychloride. So in this way alcohols will react with PCl3 and PCl5. ठीक है, इस तरीके से अल्कोहल जो वो रिएक्ट करेंगे PCl3 के साथ और PCl5 के साथ. ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद SOCl2. SOCl2 is also known as what?
थायोनाइल क्लोराइड है। SOCl2 को और क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। तो एल्कोहल जो हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, लेट अस सी। सो हियर आई हैव जनरल रिएक्शन, एल्कोहल है, इसको ट्रीट किया किसके साथ, SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। नाउ सी व्हाट विल हैपन, it will form RCl, alkyl halide, along with formation of sulfur dioxide and HCl। दोनों जो है वो गैसियस स्टेट में होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एल्काइल हैलाइड्स। वी हैव स्टडीड देयर। सो हियर आई हैव मिथेनॉल, मिथेनॉल को ट्रीट किया किसके साथ, SOCl2 के साथ। इट विल फॉर्म बट मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा along with the formation of sulfur dioxide and HCl। If I have ethanol, ethanol is treated with SOCl2 and it will form ethyl chloride along with the formation of sulfur dioxide gas and HCl gas। ठीक है। सो इस तरह से इसके केस में क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड जो फॉर्म हो जाएगा। सो अगर मिथेनॉल यूज किया तो मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, इथेनॉल यूज किया तो क्या फॉर्म हो रहा है, इथाइल क्लोराइड जो वो इथाइल क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है। सो अगर हमें एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना है, एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, वी कैन यूज, हम PCl3 यूज कर सकते हैं, PCl5 यूज कर सकते हैं, or instead of these two we can use what, SOCl2। By using SOCl2 it is the best method for the preparation of what, alkyl chlorides। next अगर हम स्टडी करें, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ अमोनिया। NH3 के साथ एल्कोहल जो वो किस वे में रिएक्ट करेंगे। सो here I have ROH, और इसको मैंने किसके साथ ट्रीट किया, अमोनिया के साथ ट्रीट किया। सी अमोनिया से एक हाइड्रोजन, अमोनिया को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, ठीक है, इस बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। सी व्हाट इज हैपनिंग, OH नेगेटिव H पॉजिटिव क्या एलिमिनेट हो रहा है, वाटर जो वो एलिमिनेट हो रहा है, और RNH2 जो है वो फॉर्म हो रहा है। अमीन बन गई, किस तरह की अमीन बन रही है, प्राइमरी अमीन जो वो फॉर्म हो रही है along with the formation of water। अब ये जो अमीन फॉर्म हुई, इसमें फिर से एडिशन हो जाएगा किसका, एल्कोहल का, ROH प्लस HNHR। ठीक है, अगेन वैसे ही रिएक्शन हो रहा है, एंड RNHR। अब यहाँ पे जो अमीन बन रही है, ये किस तरह की अमीन बन गई, सेकेंडरी अमीन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम फिर से कैरी आउट कर सकते हैं, ROH प्लस, नाउ वी हैव N, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, R ग्रुप जो प्रेजेंट है। ठीक है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो अमीन अब हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, इट विल बी व्हाट, विच टाइप ऑफ अमीन, इट विल बी टर्शियरी अमीन along with formation of water। So प्राइमरी अमीन बन रही है, सेकेंडरी अमीन बन रही है, और यहाँ पे क्या बन रही है, टर्शियरी अमीन जो है वो फॉर्म हो रही है। So in this way you can write the various reactions। Let us see these reactions with another example। So see here I am taking methanol, methanol को मैंने किसके साथ ट्रीट किया, अमोनिया के साथ ट्रीट किया। फर्स्ट रिएक्शन इज क्लियर टू यू, व्हाट विल हैपन, मिथाइल अमीन फॉर्म हो जाएगी, CH3NH2 along with the formation of वाटर। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन क्लियर है। देन एल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल, अब इसको ट्रीट किया किसके साथ, ये जो अमीन फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो इसके केस में क्या फॉर्म हो रहा है, देखो ये तो बनी आपके पास मिथाइल अमीन, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, डाइमिथाइल अमीन जो है वो फॉर्म हो रही है along with formation of water। ठीक है, देन फिर से अगर एल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहे हैं,
इस ये जो डाइमिथाइलअमीन फॉर्म हुई थी, इसको अगर ट्रीट करें ठीक है, तो CH3NCH3 अब क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्राई एल्काइलअमीन, ट्राइमिथाइलअमीन जो वो फॉर्म हो रही है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सो हियर मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, ट्राइमिथाइलअमीन फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो इन दिस वे अल्कोहल्स विल रिएक्ट विद द व्हाट, एंड अमोनिया। एक और रिएक्शन है वो आप खुद कंप्लीट कर सकते हो, CH3 CH2 OH प्लस NH3। ठीक है, सो यू कैन कंप्लीट दिस रिएक्शन। सिमिलरली इथाइलअमीन बन जाएगी, वो इथाइलअमीन फिर से रिएक्ट करे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, डाइथाइलअमीन बन जाएगी। ठीक है, जो डाइथाइलअमीन फॉर्म हुई वो फिर से रिएक्ट करेगी एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ, और क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्राई इथाइल अमीन जो वो फॉर्म हो जाएगी। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द रिएक्शन। नेक्स्ट इज reactions of alcohols involving cleavage of alkyl and hydroxyl group. So here first reaction we will study, that is acidic dehydration of alcohol, acidic dehydration of alcohols. So as far as the acidic dehydration of alcohols is concerned, see, we have ethanol CH3 CH2 OH, and it is undergoing dehydration in the presence of a concentrated H2SO4. We have studied in inorganic chemistry, concentrated H2SO4 can act as what, dehydrating agent। ये inorganic chemistry में हम already study कर चुके हैं। ठीक है, so we are heating this alcohol in the presence of concentrated H2SO4 at temperature 443 Kelvin। किस टेम्परेचर पे हम इसको हीट कर रहे हैं, at 443 Kelvin। Then it will lead to formation of alkene CH2 double bond CH2। अब डिहाइड्रेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, तो साथ में क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, let us understand this reaction with the mechanism. So first of all mechanism of this reaction is, so what will happen, so here we shall study this mechanism under 3 steps। इस mechanism को हम 3 steps में जब study करेंगे, इस mechanism का जो first step है that is protonation of alcohol। पहला जो step मैं यहाँ पे बता रहा हूँ that is what, protonation of alcohol। जो alcohol molecule है उसकी क्या होगी, protonation होगी। protonation means what, H पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है, और H पॉजिटिव कहां से आएगा, ये देखो H2SO4 है, इट विल आयनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव स्पीशीज। ठीक है, प्रोटॉन आ गए यहां से H पॉजिटिव स्पीशीज। सी अल्कोहल को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, और H पॉजिटिव का जैसे ही एडिशन होगा इसमें, देन इट विल फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास ही क्यों गया, क्यों प्रोटोनेशन हुई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी, यहाँ पे हाइड्रोजन इजिली क्या कर जाएगी, अटैच कर जाएगी। साइमल्टेनियसली दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर विच टाइप ऑफ चार्ज, इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल
है ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज रिसाइड करा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर रिसाइड करा। सो what will happen now? It will form a carbocation. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या फॉर्म हो गया, कार्बोकेटाइन जब वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब बेस यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। थर्ड स्टेप, elimination of proton, elimination of proton to form alkene, to form alkene। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा टू फॉर्म एल्कीन। सो यहां से जो एडजेसेंट पोजीशन है, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, दैट इज H पॉजिटिव स्पीशीज, और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो कैटलिस्ट है H2SO4 ये क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। सो इन दिस वे एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस दिस mechanism of dehydration of alcohol, mechanism of dehydration of alcohol in the presence of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin with another example. See, now I have secondary alcohol। अब ये किस तरह का अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, किस टेम्परेचर पे, 443 Kelvin पे। See what will happen, it will form an alkene, that is CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें इस रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म भी आप लिख सकते हो। बहुत बार ये मैकेनिज्म जो वो पूछा भी जाता है पेपर में, फाइनल एग्जाम में पूछा भी जाता है। सी आई हैव CH3 CHOH, तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, H2SO4 कैसे आयनाइज करेगा, इट विल आयनाइज एज H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव स्पीशीज। नाउ सी क्या हो जाएगा, पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, सो प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म कर दो CH3। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म हो गया। नाउ सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो CH3 CH, यहाँ पे क्या था, OH पॉजिटिव चार्ज था दिस, एंड व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म कार्बोकेटाइन एज जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था वो अनस्टेबल होगा, एंड CH3 CH3 पॉजिटिव along with formation of water। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। इसमें कोई रीअरेंजमेंट की और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। किस तरह का कार्बोकेटाइन है, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट पोजीशन से प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन H पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो एलिमिनेट होगी बेस की प्रेजेंस में। बेस हैज अ टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन यहां से गया H पॉजिटिव और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यू कैन सी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये कैटलिस्ट जो है वो क्या हो गया, रीजनरेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द रिएक्शंस। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू वोल। ठीक है, प्रोपेन टू वोल की डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म ये है। अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल की भी आप डिहाइड्रेशन जो वो कैरी आउट कर सकते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ अगर डिहाइड्रेशन का देखें अल्कोहल का, तो टर्शियरी अल्कोहल जो उनके केस में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा,
टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बन जाएगा, टर्शियल अल्कोहल्स विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। So oxidation reactions of alcohols. See, if I have primary alcohol R CH2OH, then what will happen? Oxidation means what? Addition of oxygen. Simultaneously oxygen was what? Removal of hydrogen. See, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को और एक्सप्लोर करके लिखूं RCH2OH, एक तो ये बॉन्ड हो गया, और एक यहाँ पे चाहे इस हाइड्रोजन को कंसीडर कर लो चाहे इस हाइड्रोजन को कंसीडर कर लो, एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन जैसे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बताता आ रहा हूं, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, देयर आर वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, इट विल प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन। नाउ सी व्हाट विल हैपन, यहां से हाइड्रोजन जाएगी, यहां से हाइड्रोजन जाएगी, और जो कंपाउंड है दैट विल चेंज इनटू दिस। ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लिखूं R C, सपोज यहां पे भी R आ गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करता हूं तो इस बॉन्ड की हाइड्रोजन, इस बॉन्ड की हाइड्रोजन, ठीक है, तो दिस कंपाउंड विल चेंज इनटू दिस। ठीक है, तो ये तो था सेकेंडरी अल्कोहल। एंड अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं तो टर्शियरी अल्कोहल जो है दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज बट दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। सो टर्शियरी अल्कोहल की कैसे ऑक्सीडेशन होते हैं उसके एग्जांपल्स हम सेपरेटली जो डिस्कस करेंगे। सो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड्स फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म करेंगे, एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या फॉर्म करेंगे, कीटोन फॉर्म करेंगे। ठीक है, so primary alcohol upon oxidation will form aldehyde while secondary alcohols upon oxidation will form what, ketones। ठीक है, अब इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स जो वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो प्राइमरी अल्कोहल है मेरे पास, आई हैव CH3OH। ठीक है, व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा इट विल चेंज इनटू व्हाट, HCH। आई हैव इथेनॉल CH3CH2OH, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इट विल फॉर्म इथेनॉल। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ रही है ऑक्सीजन। इफ आई हैव CH3CH2OH, दिस इज एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल भी किस तरह का, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल था, ये भी प्राइमरी अल्कोहल था। तो इस तरह के अल्कोहल्स की अगर हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होंगे, एल्डिहाइड जब वो फॉर्म होंगे। ये यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है ये जो है। और आगे जब हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स स्टडी करेंगे तो वहां पे भी मैं इसी रिएक्शन को क्या करूंगा, कोरिलेट करूंगा इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। So if I have N-butyl alcohol, N-butyl alcohol की अगर मैं ऑक्सीडेशन कैरी आउट करता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है। ठीक है, और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज किए जा सकते हैं, जोन्स रिएजेंट यूज किया जा सकता है, PCC यूज किया जा सकता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रोल है, इट विल प्रोवाइड द नेसेंट ऑक्सीजन, और क्या करेगा, हाइड्रोजन का क्या शो करेगा, रिमूवल शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी CH3 CH2 CH2 CHO क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे ब्यूटेनॉल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मिथेनॉल। कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे इथेनॉल, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पे प्रोपेनॉल, और यहाँ पे
ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर ऑक्सीडेशन कैरी आउट की तो क्या बने हमारे पास एल्डिहाइड्स बने। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, कीटोन्स बन जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, नाउ सी, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर रहे थे, एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास जैसे एल्डिहाइड्स बन रहे थे, उन एल्डिहाइड्स के अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, बट अगर कीटोन्स है, कीटोन्स की अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास किस तरह का था, सेकेंडरी अल्कोहल था, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कीटोन फॉर्म हुआ। अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके केस में दो एसिड जो बन जाते हैं CH3 COOH along with the formation of HCOOH। ये डिकम्पोज भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, सो अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बन रहा है हमारे पास किस तरह का कंपाउंड, कीटोन बन रहा है। कीटोन्स आर समवट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज और उनके केस में क्या बन जा रहे हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो फॉर्म हो जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लिख सकता हूँ कि जैसे मेरे पास था प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन कैरी आउट की तो क्या बना यहाँ पे CH3 CHO एल्डिहाइड बना। इस एल्डिहाइड की फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल बी चेंज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और एग्जांपल भी ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2OH, इसकी अगर ऑक्सीडेशन की तो पहले बन जाएगा हमारे पास प्रोपेनॉल CH3 CH2 CHO। अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे then it will be changed into प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड बने, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड बने, फर्दर ऑक्सीडेशन की तो क्या बना हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास कीटोन है, अब एक कीटोन कैसे फॉर्म हो रहा है, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है CH3 CHOH CH3, इसकी अगर ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो हमारे पास बन जाएंगे कीटोन। ठीक है, कीटोन फॉर्म हुए। अब कीटोन्स की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी व्हाट, they will not be easily oxidized, but when they will undergo oxidation then what will happen, they will form CH3 C double bond OH carboxylic acid with one less carbon atom along with the formation of a। ठीक है, ये भी फॉर्म हो सकता है, अगर आपने ये नहीं फॉर्म करना है तो आप यहाँ पे क्या फॉर्म कर सकते हैं, HCOOH। ये आगे फर्दर डिकम्पोज हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। So next is reaction of primary, secondary and tertiary alcohols with copper metal at 573 Kelvin। ठीक है, so यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ जैसे प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, इसको ट्रीट किया हमने किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ 573 केल्विन पे, 573 Kelvin। Then see what will happen. Dehydrogenation reaction will take place. हाइड्रोजन जब रिमूव कर दो, प्रोडक्ट जो आपके पास फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी एल्डिहाइड। ठीक है, ये तो था प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल, so in case of secondary alcohol, again what you have to do, you have to carry out the same reaction, dehydrogenation carry out करनी है, कॉपर 573 केल्विन पे, सी
ये कंपाउंड जो फॉर्म हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है। These reactions are also known as what? Dehydrogenation reaction. एंड अगर मैं यहाँ पे, ये तो हो गया किस तरह का एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टर्शियरी एल्कोहल, अब अगर टर्शियरी एल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी एल्कोहल के केस में वही कंडीशन है, बट टर्शियरी एल्कोहल के केस में अब देखो तो जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, जो टर्शियरी एल्कोहल है दे विल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मींस OH नेगेटिव और के एलिमिनेट हो जाएगा, साथ में H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट विल बी CH3, देन C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे और क्या है CH3 ग्रुप जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल्स को ट्रीट किया किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ, किस टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल के केस में तो फॉर्म हो रहे हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है। इसके केस में क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। सेकेंडरी एल्कोहल के केस में तो बन गया कीटोन, एसीटोन बन गया। और थर्ड जो है टर्शियरी एल्कोहल के केस में क्या बन रही है, एल्कीन बन रही है, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस एल्कीन विल बी व्हाट, 2-methyl pro-1-ene, ठीक है। सो प्राइमरी एल्कोहल को ट्रीट किया तो बने हमारे पास एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल को ट्रीट किया कॉपर 573 केल्विन पे तो बने कीटोन, और टर्शियरी एल्कोहल के केस में क्या फॉर्म हो रही है, एल्कीन जो वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो ऑल दीज वर द रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, ये सारे के सारे रिएक्शंस थे किसके, एल्कोहल्स के। एक ऑक्सीडेशन का जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, प्राइमरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड्स, फर्दर ऑक्सीडेशन कर दी तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी तो क्या बन जाएगा आपके पास, कीटोन। आगे कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बट वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से वो फॉर्म होंगे, ठीक है। एंड कीटोन्स विल बी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, बट डेफिनेटली दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ठीक है। अगर हम बात करें टर्शियरी एल्कोहल की, तो टर्शियरी एल्कोहल के केस में एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, उस एल्कीन की आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन बन जाएंगे, ठीक है। बट कार्बन एटम उसमें भी रिड्यूस होगा, फिर कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन एटम उसमें फिर से रिड्यूस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वो फॉर्म हो ही जाएंगे, ठीक है। तो एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स, फर्दर ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो ऑल दीज वर द रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द preparation of phenol and chemical properties of a